Hello dear students, in this lecture we will understand some terms which is frequently used in Java. You heard about JDK, API, JRE, right? So at least you should aware about all these terms, and you heard about JVM in my previous lectures, right? So now in this lecture we will try to understand all these terms, right? So now when you install Java in your language, right, that is called basically a complete Java package, that is called Java environment. Now that Java environment includes hundreds or even thousands of development tools, thousands of classes, and these thousands of classes having millions of methods. The development tools are a part of system known as JDK. This JDK contain all the commands required to compile and to run, right, or to generate a documentation of Java, right. All these kinds of commands are available in this kit, right. You are using javac command to compile the program, that javac is a tool, right, it is a part of JDK. You are using Java command to run your application, so that is a name of interpreter, it is also a part of JDK. So basically that tools are nothing else, it is just a commands, right. Now so that means when you install Java you automatically get JDK, right, and that tools are available in bin folder, right. आप अगर Java की installation directory देखें वहाँ पर एक bin folder होगा, you can get all these commands there, right. And after that every language having some inbuilt library, C having header files, and the same way Java having their own library, because Java is a object oriented programming language, that's why Java having loads of inbuilt classes, and that inbuilt library is called Java Standard Library, or that is called JCL, and generally it is also known as Application Program Interface API. तो जनरली जितनी भी इनबिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं उनको हम APIs बोलते हैं, राइट. C की API और C++ की API हेडर फाइल्स की फॉर्म में है, जावा की APIs पैकेजेस की फॉर्म में है, राइट. ओके, नाउ व्हाट इज JDK? तो जावा डेवलपमेंट किट कम्स विद some commands, some tools that are used for developing, compiling, running, debugging a program, right. These are the name of some commands. Like first command is applet viewer, right. Applet viewer is used to run a applet, right. Because I already told you with Java having a feature that is called, Java is a dynamic language. How Java is dynamic? You can create a applet and you can embed that applet with your HTML program, and that applet part having some dynamic contents. Its data is changed again and again, right. Or its data may be changed at runtime. So that's why it is, if you want to create some dynamic contents in your HTML page, you can take the help of applet. But for example, if your browser is not compatible with JVM, right, if your browser having no JVM, so without JVM you can't run any Java program. So if you want to test your applet with without using browser, because without browser you can't run any HTML program, and applet को हम HTML के अंदर embed करके रन करते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि if your browser is not having JVM, in that case you can take the help of applet viewer tool. applet viewer command की हेल्प से आप अपना applet रन करके देख सकते हैं, right. Now javac command, you already know about this. Javac is used to compile your program. It translate your source code into bytecode file, right, and that bytecode is later used by interpreter, and that Java command is a name of interpreter. It simply it understand only bytecode. That means the dot class file is required at that time. It required dot class file, and it convert your bytecode into machine code, right. Okay, so this is basically a interpreter. Now next is Java P, Java disassemble, right. Now what is the use of Java disassemble? The Java P command is used
to get the information of any classes or interface. Interface is a pure abstract class basically, right? So you can get any information from your classes. The Java P command generally it stands for Java disassembler. It disassembles one or more class files, right? And what is the output of this command? अगर मैं लिखूं Java P and then class name, what will happen? Its output is depend on some options, right? I will explain you with example what are these options, right? And it simply read data from bytecode, and it simply print the internal part of the classes. You can get any information like you are how many variables are private, how many which data is public, what are the different types of method, right? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप जावा पी कमांड की हेल्प से ले सकते हैं. नाउ मैं आपको एक एग्जांपल के दिखाता हूं हाउ वी कैन यूज जावा पी कमांड. नाउ CMD पे जाते हैं. आपको एक मैं एग्जांपल दिखाता हूं जावा पी कमांड का. जावा पी कमांड की कुछ ऑप्शंस हैं. नाउ सी आप जावा पी कमांड ऐसे यूज करेंगे जावा पी, देन उसका ऑप्शन आएगा, देन क्लास नेम. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास नेम, नॉट ए प्रोग्राम नेम, राइट? फॉर एग्जांपल आपको मैं एक इसमें एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है. नाउ जस्ट गो थ्रू दिस. फॉर एग्जांपल प्रोग्राम नेम इज बॉक्स डेमो, राइट? दिस इज बॉक्स डेमो प्रोग्राम, राइट? तो हियर इज ए बॉक्स डेमो प्रोग्राम. इसके अंदर एक क्लास है बॉक्स जिसके अंदर कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं और उन डायमेंशंस का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है. एक वॉल्यूम फंक्शन बना हुआ है, राइट? विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, राइट? ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे. देन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. ये सारी कोडिंग मेन मेथड के अंदर है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट? ओके, और ये जो हमने दे रखे हैं स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं. अगर आपको इस प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, राइट, विद द हेल्प ऑफ जावा डॉक कमांड. अभी हम ये जावा डॉक कमांड भी करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज बेसिकली जावा डॉक कमांड. तो इसकी हेल्प से हम जावा की डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन को आप अपने टेस्टर को, राइट, दे सकते हैं. आपकी डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे ही वो आपके प्रोग्राम को टेस्ट करेगा. और यू कैन इवन क्रिएट ए हेल्प फॉर योर एप्लीकेशन, राइट? तो उसके लिए आपके प्रोग्राम को के अंदर कमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए. विदाउट कमेंट्स यू कांट क्रिएट एनी डॉक फाइल. क्लियर? ओके, तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावा पी कमांड. तो यहाँ पर हमें यूज क्या करना है? पहले हमें यहाँ पर क्लास नेम चाहिए. तो एटलीस्ट आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, राइट? नाउ सी आई विल शो यू विद magnifier. Now see here is in D drive I am working in a folder Mahesh 01, right? Okay, now इसके अंदर you can see there is a program box demo. ऑलरेडी मैंने इसको कंपाइल किया होता है, इसकी box demo क्लास भी है. नाउ आप इसको पहले अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल इट. जावा सी box demo, right, 3.java. it is a name of program, right? तो ये हमारे पास देखिए कोई एरर नहीं है इसके अंदर. अगर आप देखें तो हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल बन गई और आप इसका ये इसके ऊपर ऑलरेडी जो बनी हुई है उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगी. दिस इज ए बॉक्स डेमो क्लास, राइट? नाउ अब जावा पी कैसे यूज करना है? आपने लिखा सिंपली जावा पी if you are not using any option and just type the name of the class. For example इसमें दो क्लास हैं, एक बॉक्स है और एक बॉक्स डेमो 3. you just write that like that. तो इसने क्लास का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा दिया, कितने इसमें मेंबर वेरिएबल्स हैं और एक इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और एक हमारे पास मेथड है, वॉल्यूम मेथड है, राइट? अगर आप कोई और डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे इसमें इनबिल्ट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑप्शन यू कैन यूज ऑल दिस थिंग. अगर आपको देखना है लोकल वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, डिसअसेंबल कोड, आपको
जितने भी मेथड है उनके सिग्नेचर्स देखने हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन देखनी है, क्लास पाथ क्या है, साइज क्या है, किस डेट को ये बनी थी, कब ये प्रोग्राम मॉडिफाई हुआ था, कितने स्टैटिक और कांस्टेंट वेरिएबल हैं, इसका वर्जन कौन सा है, यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स। लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल ये दिखाता हूँ लोकल वेरिएबल्स, राइट। तो हमारे इस प्रोग्राम में अगर आप देखें ये बॉक्स डेमो 3 क्लास के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है वॉल्यूम के नाम से नाउ, और अगर नहीं होगा तो इट विल नॉट शोइंग ऑल दी नॉट शोइंग एनीथिंग नाउ। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली आपको एक कमांड लिख के दिखाता हूँ, java p -l, राइट, एंड देन द नेम ऑफ द क्लास जिसके आपको लोकल वेरिएबल्स देखने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डेमो 3, राइट। यू कैन सी किस किस लाइन नंबर पे लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है, ये उसकी पूरी टेबल दिखा देगा कि ये लाइन नंबर पे आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। क्लियर, गॉट इट, ओके। लाइन नंबर 25 ये उसकी टेबल दिखा दी, राइट, गॉट इट। तो इन दैट वे यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको वर्जन देखना है, हेयर यू कैन टाइप वर्जन, राइट। तो ये उसका वर्जन दिखा देगा, बिकॉज अब जावा का वर्जन 1.8 इंस्टॉल है, दैट्स व्हाई इट विल शोइंग जावा 1.8। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप इनको 1 बाय 1 रन करके देख सकते हैं। एक चीज़ आपको और इसमें ऑप्शन दिखा देता हूँ, लाइक अनदर ऑप्शन इज लाइक फॉर एग्जांपल सी डिसअसेंबल द कोड। नाउ सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कमांड, java p -c and then for example box or either box demo 3. Now you will find all these things, right। कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उनकी स्टैक पोजीशन क्या है, राइट, क्योंकि मेथड जनरली स्टैक पे रन होते हैं, राइट। तो उसकी कंप्लीट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसका स्टैक, उसका मेथड एरिया, अभी मैं आपको जेवी में पढ़ाऊंगा ये सब क्या होता है, कहाँ कहाँ पर वेरिएबल्स का डंप पड़ा है, लोकल वेरिएबल्स का, कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट का डंप पड़ा है, डंप पड़ा मीन्स मेमोरी, वो उनकी क्या पोजीशन, मेमोरी में कहाँ पर वो स्टोर है, राइट। तो पूरा का पूरा कंप्लीट इंटरनल आर्किटेक्चर देगा। इंटरनल आर्किटेक्चर मीन्स देयर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आल्सो, राइट, गॉट इट। तो यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसअसेंबल, राइट, ओके। यू कैन गेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग, any class। Clear? Now next code, next is you can see java p, after that java h. Now java h, what is the use of java h command? Java h stands for java header files, and you already I think आपको मालूम होगा the concept of header files was used in CC or even using in C++, right। तो java h command generates C or C++ header files and source file that are needed to be implemented in native methods. The generated header and source files are used by any C program to reference instance variable of object from native source code. तो आप जो .h फाइल आप होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने जावा की क्लास बनाई, उसको आपने .h में किया, इट ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ सी। जैसे जावा के अंदर क्लासेस होती हैं, सी में स्ट्रक्चर होता है, तो एग्जैक्टली उस क्लास का वो स्ट्रक्चर बना देगा, राइट। और आप उस हेडर फाइल्स को आगे यूज कर सकते हैं सी में, जावा के अंदर ही रहते हुए। बट उसके लिए आपको नेटिव लाइब्रेरी की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड नेटिव लाइब्रेरी। तो उसके लिए नेटिव मेथड्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, देयर इज अनदर सेट ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड नेटिव मेथड, जिसकी हेल्प से आप जावा के अंदर रहते हुए जावा के थ्रू हेडर फाइल्स बना सकते हैं, उनको सी में यूज कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी, डिफरेंट लैंग्वेज के बीच में भी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो दैट इज कॉल्ड जावा एच। तो जावा एच कैसे यूज होते हैं, नाउ I will show you with example how we can create Java file. Now see here, तो all these are the basically, now see Java H। तो इसके लिए हमें दो ऑप्शंस यूज करनी है, वन इज O, अनदर इज एक है दैट इज स्टब्स, राइट। तो स्टब्स क्या करता है, इट कॉसेज ए जावा एच टू जनरेट सी डिक्लेरेशन फ्रॉम जावा ऑब्जेक्ट फाइल।
तो जावा की फाइल से अगर हमें सी की हेडर फाइल बनानी है तो क्या होगा, प्रोग्राम के अंदर जितने भी हमारे क्लासेस हैं ये उनकी हेडर फाइल्स बना देगा। फॉर एग्जांपल मेरे इस प्रोग्राम के अंदर दो क्लासेस हैं, बॉक्स एंड बॉक्स डेमो 3, राइट। तो हमें इसका सिंपली हेडर फाइल बनानी है। तो हेडर फाइल का सिंटेक्स क्या, देखिए हेडर फाइल का सिंटेक्स है, यू कैन सी हियर जावा एच कमांड देन ऑप्शन देन फुली क्वालिफाइड क्लास नेम। यहां आपको क्लास का नाम देना जिस क्लास को आपने हेडर फाइल में कन्वर्ट करना है, दैट मीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है सी हियर जावा एच, राइट। देन मैं लिखा हाइफन स्टब्स, देन कोई भी प्रोग्राम का नाम, लाइक अभी एक बॉक्स क्लास मैंने आपको बताई थी, दैट इज बॉक्स, राइट। आपको इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना, दैट बॉक्स क्लास मस्ट बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड्स, राइट। तो नाउ अब मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूं इसको। नाउ यू कैन सी हियर देयर इज ए box डॉट एच फाइल। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, लाइक मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं हाउ इट लुक लाइक दैट, राइट। तो एक मशीन फॉर्म में होगी, यू कांट अंडरस्टैंड इट, जस्ट नाउ सी हियर आई विल शो यू ये बॉक्स एच। नाउ यू कैन सी इन नोटपैड, see here it will create like that, right, understand? So in that way you can use java h, or if you want to concatenate two or more multiple header files, in that case you can use, अगर आपको एक से ज्यादा हेडर फाइल्स बनानी है और उनको कंबाइन करना है, राइट, हियर यू कैन राइट जावा एच हाइफन ओ कॉन्कैटिनेशन के लिए। देन आपके पास यहाँ दो क्लासेस थी, बॉक्स एंड बॉक्स डेमो 3, राइट। तो अगर अब आप लिस्ट देखें, यू कैन सी लाइक दैट बॉक्स एंड बॉक्स डेमो, यू कैन गेट इस बॉक्स क्लास के अंदर एक ये जो बॉक्स क्लास अभी बनी है, देखिए, राइट, जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, यू कैन सी हियर इन बॉक्स क्लास इट विल कंटेन बोथ द कंटेंट्स ऑफ box class and box demo 3 class, clear? So in that way you can use that header, you can generate header files from java, right, got it? And another is then java doc, right? java doc कैसे यूज करेंगे? Now java doc is used to create a documentation in HTML format documentation, right? तो HTML फॉर्म में आप जावा डॉक कैसे यूज करेंगे? यू कैन सी हियर, आई विल शो यू विद एग्जांपल। फॉर दैट आपको प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। आपको जब भी कोई चीज डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में करनी है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है /, देन आपको जो भी कमेंट देना है वो सिंगल स्टार लिखना है, देन उसको इससे क्लोज करना है, राइट। तो आपको प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन होगी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्लास एंड अंडर दिस क्लास व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड, राइट, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तो जितना आपका प्रोग्राम में कमेंट्स होंगे उतना डॉक्यूमेंटेशन उसका स्ट्रॉन्ग होगा, एंड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप कोई भी प्रोग्राम इंडस्ट्री में नहीं बना सकते, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर इवन आप जितना आपका प्रोग्राम कोड होता है उतना ही डॉक्यूमेंटेशन का कोड होता है। तो यहाँ पर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, व्हाई यू इनिशियलाइज वैल्यू 10, 20, 15, तो एवरीथिंग यू मस्ट बी गिवन, राइट, ओके। नाउ अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने का तरीका वेरी सिंपल है। नाउ सी, आफ्टर दैट जावा डॉक के लिए देखिए क्या करना है। जावा डॉक के लिए सिंपली आपको जावा डॉक कमांड यूज करनी है, देन फाइल नेम यूज करना है। और अगर वो फाइल किसी फोल्डर के अंदर है, पैकेज के अंदर है, तो आप पैकेज का नाम भी दे सकते हैं। तो वो जो फाइल बन के आएगी, पैकेज का नाम आएगा, अंडरस्कोर देन फाइल का नाम आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम फाइल नेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये सारे कमेंट्स दिए हुए हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मेरे प्रोग्राम का नाम है box demo 3.java, राइट। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम का नाम दूंगा, नाउ सी, जावा
doc box demo 3 डॉट जावा, यू हैव टू राइट दैट। तो ऑटोमेटिकली कि इसकी HTML डिक्लेरेशन आ जाएगी और एक कंप्लीट फाइल बन के आ जाएगी। अगर आप देखें, मैं आपको इसी फोल्डर में, करंट फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा, इसका पूरा HTML डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा। देखिए मेरे प्रोग्राम के अंदर अभी अभी कितनी क्लासेस बनी, ऑल क्लास फ्रेम, ऑल क्लास नो फ्रेम, देन हेल्प डॉक, इंडेक्स, इंडेक्स सोल, ये अभी अभी बनी है इस फोल्डर के अंदर। अगर आप इसका टाइम भी देखें, राइट, 19 जनवरी को, इट इज ये 1:10 PM पे बनी है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाउ, और इवन 1:14 पे, सॉरी, ये 1:14 वाली सारी फाइलें देखिए, ऑल दीज आर द HTML डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको आप किसी भी क्रोम फाइल के अंदर ओपन कर सकते हैं, जैसे ये है बॉक्स डेमो 3, राइट, तो इसका HTML डॉक्यूमेंटेशन बन गया। नाउ यू कैन सी हियर लाइक दिस, राइट, तो क्लास का नाम, राइट, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसमें क्रिएट होकर आ जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ जावा डॉक्यूमेंट इवन यू कैन क्रिएट ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम। Clear? Got it? Okay. Now, next is next tool is JDB, Java Debugger. Now, Java Debugger, as name is suggest, it is used for debugging purpose. With the help of JDB, you can even debug your program for it is basically used for logical errors, right? If you want to resolve logical errors, you can use Java Debugger. Java Debugger में क्या होता है, with the help of Java Debugger आप इसमें ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में 50 लाइंस का कोड है, आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और बार बार आउटपुट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, राइट, सिंटेक्स एरर नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल आंसर इज नॉट कमिंग अप टू एज पर यूर एक्सपेक्टेशन। तो आप क्या करेंगे, जहां तक आपको लगता है कि आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट 20 लाइन तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो वहां पर आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। तो आप इस कमांड की हेल्प से आप उस प्रोग्राम को वहां तक रन कर सकते हैं जहां पर आपने ब्रेक पॉइंट लगाया है, और उस समय जो भी वेरिएबल्स की वैल्यूज है उनको आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं, राइट, वॉच कर सकते हैं उनकी वैल्यूज को, और आप देख सकते हैं कि इस लाइन तक 20 लाइन तक अगर हमारा आउटपुट एज पर आवर एक्सपेक्टेशन आ रहा है तो यू जस्ट लीव दैट 20 लाइन्स। नाउ अब आगे की 30 लाइंस जो बची हैं उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। ऐसे ही आप 30th लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, वहां तक रन कर सकते हैं। तो आप सेक्शंस की फॉर्म में प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसको हम कमांड लाइन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम जो एक्लिप्स आईडी है उसकी हेल्प से भी हम जावा डिबगिंग यूज कर सकते हैं। एंड जावा डिबगिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजोल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स, राइट। सी में जब आप काम करते हैं, टर्बो सी में या आंसी सी में, तो उसमें आप F7 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ट्रेसिंग के लिए। आप एक एक लाइन रन करके देख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा के आप एक एक लाइन रन करके देख सकते हैं और अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं, राइट। तो प्रोग्राम कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज ए बेस्ट वे यू कैन डिबग विद द हेल्प ऑफ JDB कमांड। नाउ JDB कमांड कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये सिंपली 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। नाउ फॉर एग्जाम्पल सी दिस प्रोग्राम, मैंने इसमें एक ऐड क्लास बनाई है और 2 नंबर को ऐड करने का ये प्रोग्राम बनाया है। ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ 2 लोकल वेरिएबल हैं A एंड B। ये ऊपर जो क्लास है ऐड, उसका मैंने ऑब्जेक्ट लिया और विद दी हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एडिशन फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ और उसके अंदर A और B को एज ए आर्गुमेंट यूज कर रहा हूँ, राइट, पैरामीटर पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे, राइट। तो अब इसको कैसे यूज करना है, डिबग कैसे करना है और डिबगिंग काम कैसे करती है, नाउ आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, राइट। नाउ अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। आपने इसको कंपाइल करना है। जावा सी प्रोग्राम नेम इज add.java। ये कंपाइल हो गया। इसका डॉट क्लास फाइल भी बन गया होगा, यू कैन सी हियर, ये डॉट क्लास फाइल बन गया। नाउ आफ्टर दैट जस्ट मिनट, क्लियर। नाउ अब हमें जावा डिबगर कैसे यूज करना है, जस्ट राइट डाउन JDB एंड द क्लास नेम, राइट। JDB स्टार्ट हो गया। अब देखिए ये ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। नाउ यू आर इन JDB मोड, राइट। अब JDB मोड के बाद अब आपको डिबगर रन करना है, जस्ट रन, राइट।
क्लियर? आप रन कर सकते हैं, कहीं स्टॉप करना है यू कैन इवन स्टॉप दैट, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अब इसको कैसे काम करना है, आई अगेन स्टार्ट JDB ऐड, राइट? और आपने यहां लिखा स्टॉप एट, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं लाइक माई प्रोग्राम क्लास नेम इज ऐड, राइट? अंडरस्टैंड? जस्ट अ मिनट, यू है राइट स्टॉप, ठीक है, इन, फॉर एग्जाम्पल मैं मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से ही ब्रेक करना चाहता हूं, तो स्टॉप इन ऐड डॉट मेन, राइट? तो ऐड क्लास का नाम है, उसके अंदर मेन स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड को क्लास के नाम के साथ यूज करते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो यहां पर ये ब्रेक पॉइंट सेट हो गया, राइट? अब आप इसके बाद अगर इसको रन करना चाहते हैं तो यू कैन रन दिस कमांड विद द हेल्प ऑफ लाइक आपने लिखा रन ऐड, राइट? तो ये उसके बाद स्टार्ट होगा, राइट? फर्स्ट लाइन पे मेन की ऐड स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही मैं उसको आगे रिज्यूम करूंगा, रन करूंगा, तो उसके बाद ये देखिए ये यहां पर बंद हो गया, राइट? मेन की फर्स्ट लाइन पे, क्योंकि मैंने लिखा स्टॉप इन ऐड डॉट मेन। इवन मैं इसमें लाइन नंबर भी बता सकता हूं, राइट? इसमें स्टॉप इन के बाद यहां कोई नंबर लिख दीजिए, आपको यहां से लाइंस देखनी पड़ेंगी। यहां पर स्टॉप इन के बाद एक नंबर लिखिए, और नंबर के बाद आप ऐड डॉट मेन लिख सकते हैं। तो मेन का मान लीजिए 5th लाइन पे आपको स्टॉप करना है, स्टॉप इन, यहां पर वो नंबर लिखेंगे, पर यहां मेन से काउंटिंग नहीं करेंगे लाइंस की, आपको टॉप ऑफ द प्रोग्राम से जहां से लिखना शुरू किया वहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इनके बाद वो नंबर लिखेंगे और ये लिखेंगे, तो ये उस पर्टिकुलर जगह पे जाके स्टॉप होगा। अभी मैंने कोई नंबर नहीं दिया, तो इसने मेन की फर्स्ट स्टेटमेंट पे स्टॉप कर दिया, राइट? गॉट इट? तो यहां पर आप इसके साथ आगे स्टार्ट करना है, आप इसको रन लिख सकते हैं, सॉरी जस्ट अ मिनट, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन के लिए CONT लिखते हैं, नोट रन CONT, तो इसका आंसर आ गया, राइट? तो ऐसे आप इसमें ब्रेक पॉइंट दे सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम इसको एक्लिप्स में भी कर सकते हैं, राइट? तो जस्ट गो थ्रू माई वीडियो एंड ट्राई टू रन ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीजें आ जाएंगी, राइट? तो इन दैट वे यू कैन यूज जावा डिबगर। तो जनरली प्रोग्रामिंग सीखते हुए हम इन टूल्स को इग्नोर कर देते हैं, जस्ट जावा सी और जावा कमांड ही बार बार यूज करते हैं। इट इज बेटर यू हैव टू लर्न ऑल दीज कमांड्स। तो एप्लेट व्यूअर जब हम एप्लेट करेंगे तो डेफिनेटली इसको भी रन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे टूल्स समझ आ गए होंगे, राइट? ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will learn another term that is called JVM. Okay, now after the JDK I am talking about Java environment. In Java environment I am already understand Java development kit, what are the different commands available in JDK. Another is, you can see here, JCL or API. Now the entire Java API or inbuilt API is divided into some categories. Now these are the categories: language support, utility support, input output support, all these are the different categories, right? तो इनपुट आउटपुट से स्टेटमेंट इसके क्लासेस इसके अंदर होंगी, लैंग्वेज सपोर्ट क्लासेस इसके अंदर होंगी, राइट? तो जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट में हम JVM के बारे में पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू स्टूडेंट्स।